Assalamualaikum everyone. Welcome to lecture number 13 of English grammar series. I hope you are all doing well by the grace of Allah Almighty. Today discuss about adjective, what is the role play in English grammar series and how to use it. Let it start. Introduction to adjective. Adjectives are words that describe or modify nouns and pronouns. नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करना, उनको मॉडिफाई करना, वो हमारे पास क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। किसी भी नाउन जिसमें उसकी तारीफ, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और उनकी खासियत को बयान किया जाए, वो एडजेक्टिव होते हैं। दे प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़ और स्टेट्स ऑफ द नाउन्स दे मॉडिफाई। क्वालिटीज़ मीन्स काइंड पर्सन, क्वांटिटीज़ मीन्स numbers 2, 3, many और states means happy child। एडजेक्टिव्स हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग को इन्हांस करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। पहले क्या होता था, सिंपली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सेंटेंसेस बना लिए जाते थे। उनका नहीं, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ आ टीचर, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, शी इज़ आ ब्यूटीफुल टीचर। अब जो इसमें ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ किया गया वो किसको एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव को। और भी इसमें जैसे कि ब्रेव, नाइस, स्ट्रॉन्ग, अगली, ये वर्ड किसको एक्सप्लेन करते हैं, एडजेक्टिव को। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। These adjectives describe the qualities or characteristics of a noun. They tell us what kind of a person, place, or thing we are talking about. Its purpose, they make sentences more detailed and colorful by adding information about appearance, size, emotion, etc. For example, happy, blue, tired, old. Usage in a sentence: the happy child played in the blue sky. The word happy describes the emotions or state of a person, and the word blue, it describes the color of a pencil. Tall describes the height of a person or object. Old describes the age of a person or thing. Got it? नेक्स्ट टाइप इज़ अबाउट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, द आंसर, क्वेश्चन, हाउ मच और हाउ मैनी। इट पर्पज फोकस ऑन काउंटिंग, measuring object, helping clarify exact numbers or amount in a situation. For example, some, many, few, all. Some refer to an indefined quantity. Many refer to large numbers, few refer to small numbers, and all refer to an entire quantity. Usage in a sentence: there are many apples in the basket. अब the word many describe that quantitative adjective. Third type is about demonstrative adjectives. These adjectives point to a specific noun. It focuses specific thing, person, you are talking about it. For example, this, that, these, those. These refer to a something close to you. That refer to some far away. These refer to many things close to you. Those refer far away. Usage in a sentence: I prefer those shoes over these. The word those shoes refer to shoes that are further away, and the word these refer to shoes that closer. Got it? Next type is about possessive adjective. These adjectives shows ownership or possessions. Means that shows that something belongs to someone. For example, my, your, his, her, its, our, their.
My belongs to me, your belong to you, his her belong to him, her, its belong to thing or animal. Usage in a sentence: that is her book. The word her shows that book belong to a female person. This full sentence means book is here. Fifth type is about interrogative adjectives. These adjectives are used in question to modify nouns. Ask question about noun before noun to modify it. For example, which, what, whose. Which used to ask about a choice or opinion. What used to information or detail. Whose used to ownership or belonging. For example, usage in a sentence: which movie do you want to watch? The word which is asking about a specific choice of movie. It is modify the noun movie to give more information. Got it? Next type is about indefinite adjectives. These adjectives provide a non-specific amount or identity of a noun. It is general idea about amount or identity of a noun. For example, any, some, few, several. Some refer to unspecific choice. Some refer to small but indefinite amount. Few refer to a small numbers. Several refer to a more than a few but not a lot. Used in a sentence: I need some help with my homework. The word some shows that speaker needs an indefinite amount of help. It modifies the noun help without giving an exact quantity. Got it? Comparative and superlative forms. Adjectives can also express different degrees of comparisons. Number one is about comparative adjectives. Used to compare two nouns. जब दो nouns के दरम्यान हम compare करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? Comparative adjectives. Typically found by adding er to the end of the adjective or using more before the adjective. एंड पे हम क्या यूज़ करते हैं? er, और एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? मोर का वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास वर्ड है टॉल, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे? er, तो क्या बन जाएगा? टॉलर. स्मार्ट है तो हम क्या लगा देंगे? er, स्मार्टर. अब जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये जो है इसमें जो आवाज़ का फ्लो है वो कंटिन्यूस नहीं है. ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल तीन आवाज़ों से मिल के बना है, तो ये क्या है? एक से दो से ज़्यादा क्या है? सिलेबल एडजेक्टिव हैं, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? मोर. जब एक ही फ्लो में आवाज़ निकलेगी तो हम उसके साथ er का इजाफा करेंगे. हमारे पास जब दो या तीन से ज़्यादा जो हमारे पास सिलेबल एडजेक्टिव होंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? मोर यूज़ करेंगे. यूजेज इन अ सेंटेंस: शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर. अब इसमें क्या है? टॉलर, ये किसको शो करवा रहा है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव टॉलर कंपेयर हर हाइट टू हर ब्रदर्स हाइट. वर्ड देन, अब जो यहाँ पे ये जो देन है इज ऑफन यूज विद कंपैरेटिव्स टू शो सेकेंड नाउन बीइंग कंपेयर्ड. गॉट इट? सेकेंड इज अबाउट सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स यूज टू कंपेयर थ्री और मोर नाउन्स. जब तीन से ज़्यादा नाउन के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा. इसके एंड में हम क्या यूज़ करेंगे? est. ठीक है, एडजेक्टिव के एंड पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? est और यूजिंग मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टॉल है तो हम क्या लगा देंगे? टॉलेस्ट. और स्मार्ट है तो स्मार्टेस्ट. ये एक ही फ्लो सिलेबल एडजेक्टिव हैं, एक ही फ्लो में आवाज़ निकल गई है तो हम इसे est लगा देंगे.
अगर हमारे पास जैसे ब्यूटीफुल का वर्ड है, तीन आवाज़ें निकली हैं तो ठीक है, 3 से ज़्यादा सिलेबल एडजेक्टिव हैं तो हमने इसके साथ किसका यूज़ किया है, मोस्ट का। गॉट इट। यूजेज इन अ सेंटेंस, ही इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब जहाँ पे स्मार्टेस्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव को। एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, अगर लास्ट पे वाई है, फॉर एग्जांपल हैप्पी, तो हैप्पी के हम लोग एंड पे क्या लगाएंगे, IEST, हैप्पीएस्ट। गॉट इट। जहाँ पे एंड पे वर्ड पे क्या इशू हो, वाई हो, तो हम क्या लगाएंगे, IEST का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। When multiple adjectives modify a noun, they typically follow a specific order. जब हमारे पास मल्टीपल एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे एक ऑर्डर के अंदर। फर्स्ट इज़ अबाउट क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, इन नंबर्स। हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्टिकल्स होंगे, एन, द, दिस, दैट, दिस, ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड इज़ अबाउट क्वालिटी और ओपिनियन, मीन्स दैट कि उसकी खूबियाँ होंगी, ब्यूटीफुल, अगली। थर्ड इज़ अबाउट साइज, के बिग है, स्मॉल है, ठीक है। फोर्थ इज़ अबाउट एज, के एज में क्या है हमारे पास, ओल्ड है, न्यू है, ठीक है। फिफ्थ इज़ अबाउट शेप, रेक्टेंगुलर है, ठीक है, सर्कल है। सिक्स अबाउट कलर, वाइट है, रेड है, ब्लैक है। एट्थ हमारे पास क्या है, मटेरियल। मटेरियल में क्या है, आयरन का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, ठीक है, वुडन है। नाइन्थ पे हमारे पास क्या है, पर्पस, जैसे कि चेयर, टेबल। चेयर हम किस लिए यूज़ करते हैं, डिनर के लिए, ठीक है। और टेबल हम किसके लिए, बुक्स रखने के लिए यूज़ करते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, आई हैव 2 स्मॉल ऑल राउंड रेड वुडन टेबल्स। इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव्स आर इन द करेक्ट ऑर्डर एज पर द अबव रूल। जैसे कि यहाँ पे 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी को। स्मॉल किसको इंडिकेट कर रहा है, क्वालिटी को। साइज किसको इंडिकेट कर रहा है, स्मॉल या सम, ठीक है। ओल्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, एज को। राउंड किसको इंडिकेट कर रहा है, शेप को। एंड रेड इंडिकेट कर रहा है कलर को। एंड वुडन किसको शो कर रहा है, हमारे पास मटेरियल को। गॉट इट। कॉमन मिस्टेक्स विद द एडजेक्टिव्स। 3 कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं। नंबर 1, मिसप्लेसिंग एडजेक्टिव्स, कि हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एडजेक्टिव शुड बी प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। एग्जाम्पल है, द कैट इज़ ब्लैक फ्लूफी। हालांकि पहले किसको आना चाहिए, एडजेक्टिव को आना चाहिए, उसके बाद नाउन आएगा। द फ्लूफी ब्लैक कैट इज स्लीपिंग। सेकेंड जो मिस्टेक करते हैं, यूजिंग डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ मोर टालर देन हीज़ फ्रेंड। अब यहाँ पे मोर और टालर दोनों का इकट्ठा यूज़ किया गया, हालांकि ये ठीक नहीं है। अगर ये एक ही सिलेबल एडजेक्टिव है तो हम टालर का ही यूज़ करेंगे। ही इज़ टालर देन हीज़ फ्रेंड। जो थर्ड मिस्टेक करते हैं, ओमिटिंग एडजेक्टिव्स। समटाइम एडजेक्टिव्स आर नीडेड फॉर क्लैरिटी। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, शी वॉर अ ड्रेस। ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया ना, शी वॉर अ ड्रेस। यहाँ पे हम एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं तो शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस किसको इंडिकेट कर रहा है, एडजेक्टिव को। कंक्लूजन, एडजेक्टिव्स play a critical role in enriching our language, allowing us to provide more detail and express your thought more vividly. By understanding the types, forms, and proper usage of adjectives, students can improve their writing and enhance their overall communication skills. Means that learning how to use different types of adjectives correctly can make your writing and communication clear and more engaging. Encourage students to practice use adjectives in various contexts to become more comfortable with their application.
आई होप सो आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।